Atmanaman, this is me Tanu Kaushal, and today I welcome you to my special episode where I will be diving deep into the sacred art of healing. So आज हम discuss करेंगे about mind, body and soul healing, and also I will share about my own journey, how I came into healing, what made me a healer, and what was the reason that I left my well-paying business and came into healing. I have done more than 3,000 healing sessions to awaken the true essence through energy work, Akashic records, past life therapy, and deep soul alchemy. And today is such an honor for me to share my journey आप सब लोगों के साथ about how my journey has been and मैं क्यों इस फील्ड में आई, what has brought me into healing, and I would like to also share what are the reasons that I am a healer today. And thank you so much to all of you for joining me, and I'm so grateful to you, to God, and everyone else in my family for providing this sacred space for me where all my conversations are helping everyone who is in this journey. This is a question that I have been asked many times, that what is it that triggered my journey? So मेरी जो journey है, it began as a deep inner calling. From childhood, I was always feeling like that I need to understand why there is suffering, why there is no peace around, and what does it really means to have peace in life. From a very early age, I used to be very intuitive, sensitive to energies, and I could see and feel दूसरों के emotions even when they said nothing. And this sensitivity became a gift, a guide, and also the source of trauma for me. Life led me through different moments, deep transformation, pain, loss, awakening, and every experience became a teacher for me. And through them, I have realized that healing is not about fixing what is broken. Healing सिर्फ फिक्स नहीं कर सकती, बल्कि healing से हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर क्या है, which is already there, and I need to just make it whole and to recognize myself, to make myself whole and complete. यानी मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं है, मेरे अंदर जो भी है बस मुझे उसको रिकॉग्नाइज करना है. तो जब मैंने पहली बार रेकी सीखा तो मुझे लगा कि मैंने कुछ एंशिएंट सोल लैंग्वेज सीखी है, या कुछ ऐसा है मेरे अंदर जो कभी जगा हुआ ही नहीं था, और रेकी सीखने से कुछ बहुत सोया हुआ मेरा एक पार्ट था जो कि जाग गया. When I explored Akashic records, फिर past life therapy सीखी, theta healing सीखी, magnified healing, and there were many other multidimensional healing modalities. उन सबको सीखने के बाद I felt that mind, body and soul are so beautifully connected. And healing is not just remembering, it is a sacred journey of remembrance. It is not a one-time remembrance. So this is like a process where you remember through the different layers of pain, and it also helps you to understand कैसे हम अपने आप तक वापस पहुंच सकते हैं, reaching to yourself. और ये मेरे अंदर से मेरी सोल की एक कॉलिंग थी, क्योंकि इसके थ्रू मुझे समझ में आया कि कैसे हम अपने अंदर एक पूरी शांति, पूर्ण शांति ला सकते हैं, जो अदरवाइज आप लाइफ में कितना भी आगे चले जाएं, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके रिलेशनशिप्स हैप्पी हो, आपकी लाइफ में सब कुछ हो, बट इट डजंट सैटिस्फाई यू बिकॉज इंटरनली कहीं ना कहीं आपको ब्रोकन फील होता है. सो दिस वॉज द मेजर रीजन दैट ब्रॉट मी इन टू हीलिंग, एंड वंस आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ, देन आई फेल्ट लाइक कि नाउ आई कैन हील अदर्स एंड हेल्प देम ऑल्सो. So according to me, every being is sacred and they are forming a trinity or triune, जैसे कि mind, body and soul, यानी they are three things but they form a unit together, and each part की अपनी एक language है, अपनी एक rhythm है, एक काम करने का तरीका है, एक vibration है. And from the mind हमारी awareness चालू होती है. From the mind we recognize people. हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न्स ऑफ फियर, डाउट, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, एंड थ्रू डिफरेंट एफर्मेशंस, थ्रू माइंड रीप्रोग्रामिंग, थ्रू थीटा, गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, हम इन सभी ओल्ड स्टोरीज को रीराइट कर सकते हैं, न्यू सीड्स को इम्प्लांट कर सकते हैं ऑफ एम्पावरमेंट, एंड कम्प्लीटली चेंज द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन. एंड थ्रू ऑल ऑफ दीज अप्रोचेस we can completely heal the mind of a person, bringing them into alignment with their own self. For working with body, energy alignment, crystal grids, sound frequencies, they work wonderfully because हमारी जो body है
इट कैरीज इट्स ओन मेमोरी, इमोशंस, डिफरेंट लीनिएजेस, हमारी डिफरेंट लाइफ टाइम्स, हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी, और ये सारी जो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी है, इट्स स्टोर्ड इन आवर डीएनए, हमारे सेल्स में। एंड अगर हम अपनी बॉडी को ट्रीट करें विद कंपैशन, विद लव, सेल्फ केयर, तो हमारी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। ऑल्सो अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि जो पेन है पर्टिकुलरली किसी भी बॉडी पार्ट में, वो क्यों है, उसके पीछे छुपा हुआ इमोशन क्या है, तो भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू हील योर बॉडी। व्हेन इट कम्स टू हीलिंग योर सोल, इन दैट केस वी कैन गो ऑन टू डीपर डिमेंशंस, जैसे कि आकाशिक जर्नीज है, पास्ट लाइफ थेरेपी है, वी कैन ऑल्सो डू थीटा हीलिंग, वी कैन डू ऑटोमेटिक राइटिंग। देयर आर फ्यू टूल्स दैट कैन हेल्प अस रिकनेक्ट करने में अपने हायर एसेंस के साथ, अपने पर्पस के साथ, एंड अपनी सोल के साथ। तो जब हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, सो वी आर एबल टू हील ऑल थ्री ऑफ दीज डिमेंशंस एंड ब्रिंग हार्मनी टू आवर लाइफ टुगेदर। माइंड पीसफुल है, बॉडी को सेफ फील हो रहा है, और आपकी सोल में इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ट्रुथ, इन दैट केस हमारी पूरी बॉडी, पूरा माइंड और सोल एक साथ अलाइन हो जाता है, एंड हम हीलिंग ईजिली कर पाते हैं। और ये एक्चुअली एक मिरेकल जैसा लगता है, वेयर सडनली आपको बहुत सारा ट्रॉमा है, सडनली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, विद द मोमेंट यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, आपके सारे ब्लॉकेजेस, आपके सारे पैटर्न्स स्लोली स्लोली ख़त्म होने लगते हैं, एंड यू कम इनटू द एनर्जी ऑफ पीस, एनर्जी ऑफ हार्मनी, और अपनी लाइफ आपको अच्छी लगने लगती है। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन ब्लॉकेजेस दैट पीपल फेस इन अचीविंग कंप्लीट वेलनेस, एंड उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। द बिगेस्ट ब्लॉकेज जो हमारी लाइफ में हमें फील होता है, वो होता है फीलिंग इनविजिबल, मैं किसी को दिखाई नहीं देती क्या। द फियर, गिल्ट, सेल्फ डाउट, एंड हमारे अंदर जो अनवर्दीनेस की फीलिंग है, ये सारे इमोशन स्टोर होते हैं हमारी एनर्जी फील्ड में, एंड ये रिपीटेड पैटर्न्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में से हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी हेल्थ में और हमारे फाइनेंसेस में रिपीट होते हैं। ये सारे ही पैटर्न्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके ही हों, कई बार आप इन पैटर्न्स को इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने एंसेस्टर्स से, कार्मिक मेमोरी से, या कलेक्टिवली हम उनको गैदर करके अपने साथ में कैरी कर रहे होते हैं। हम सारे ये जो पैटर्न्स हैं, इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप अवेयरनेस में काम करें तो इन सभी पैटर्न्स को हील किया जा सकता है। हीलिंग जब स्टार्ट होती है तो पेन बढ़ सकता है, लेकिन जब हम उस पेन के बारे में समझते हैं तो हीलिंग ईजी हो जाती है। ब्रेथ वर्क, फॉरगिवनेस रिचुअल्स, जर्नलिंग और एनर्जी क्लियरिंग से हम इन सारे के सारे सिम्टम्स को और एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं। एंड तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है जब हम अपने माइंड से अपने हार्ट की तरफ आने लगते हैं, जब हम याद करते हैं कि हम सभी डिवाइन बीइंग्स हैं, हम सब टूटे नहीं हैं, हम सब ब्रोकन नहीं हैं, बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हैं। हीलिंग हमें याद कराती है जो कि हमें ऑलरेडी पता है, और उस टाइम पे हम ये याद कर पाते हैं कि हम सभी डिवाइन बीइंग्स हैं। वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स, हम सबके अंदर भगवान बसते हैं, और वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू हील आवरसेल्फ कंप्लीटली। और इस सब का ब्लॉक हमारा फियर है। इस सब के लिए हमारी जो एनर्जी है वो हमें हील करने में हेल्प करती है। नाउ लेट मी शेयर अ सिंपल रिचुअल और अ डेली प्रैक्टिस दैट कैन हेल्प यू टू बैलेंस योर माइंड, बॉडी एंड योर सोल। आई ऑलवेज फील कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ कैन बी ईजियर, हमारे रिचुअल्स भी ईजी हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम सीक्रेट भी हो सकते हैं जो हमें डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट करें। तो एवरी मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट योर डे, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, लेफ्ट हैंड अपने वूम पर रखिए, या अपने सोलर प्लेक्सस पे रखिए, या अपनी नाभि पर रखिए, एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स। एंड आपको सिर्फ इतना अफर्म करना है, आई एम सेफ, आई एम होल एंड आई एम डिवाइन। आई एम सेफ, आई एम होल एंड आई एम डिवाइन। आई एम सेफ, आई एम होल एंड आई एम डिवाइन। ये 3 बार आप बिस्तर से उठने से पहले डेली अफर्म करिए, एंड विजुअलाइज करिए कि गोल्डन लाइट सीधे आपके ऊपर आ रही है, डिवाइन सोर्स से आपके सर के ऊपर, फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, फिलिंग एवरी सेल, पीस एंड वाइटैलिटी के साथ आपकी बॉडी में नीचे जा रही है, स्लोली स्लोली गोइंग डाउन थ्रू योर फीट
एंड गोज़ टू मदर अर्थ। ये 5 मिनट रिचुअल जो है एवरी डे करने पर आपकी एनर्जी फील क्लियर हो जाएगी, आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे एंड आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है वो इस बॉडी में एंकर हो जाएगी। साथ के साथ आपका मदर अर्थ के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। इसमें आप छोटे छोटे और कुछ चीज़ें ऐड कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने साथ में पानी रख के बैठ सकते हैं एंड जब आपका ये रिचुअल कंप्लीट हो जाए, से थैंक यू टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू द लाइट, एंड वो पानी पी सकते हैं।